آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا بیٹا بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے آج دیکھا جو جواب دے رہا تھا مجھے، میں نے صرف اسے بولا کہ اپنا گیم بند کرو اور اس پہ آ جاؤ، گھر کے کچھ کام میں نے دیے تھے، یہ کر لو اور پڑھائی کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس نے ایسے مجھے دیکھا اور بس ضد پہ آ گیا۔ میں کہہ رہا تھا نا تمہیں، سنتی نہیں ہو۔ بالکل، اس کو سارا کھانا پیٹ بھر کے مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز کی اجازت تو دے دیتی ہے اسے، بس اور کیا، اس نے وہی کرنا ہے، پھر منہ بنا کے بیٹھ جانا ہے۔ ہاں بالکل، اور پھر اس سے کیا، باقی جو سارے بچے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے بہیو کر رہا ہے تو وہ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ اتنا بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ کیسے، ہم چھوٹی عمر سے تو اس کو پال رہے ہیں، پہلے بھی تھوڑی بہت ضد ود کر دیا کرتا تھا، لیکن پتا نہیں کیوں بدتمیز ہو گیا ہے، بڑا ہی بے ادب، اور سمجھ نہیں آ رہا ہمیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں، ویلکم اگین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں، اور میں اب پھر ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح کچھ چیزیں بار بار دہراؤں گی، کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور ہر چیز جو میں بتا رہی ہوں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ اب اس کو بہتر سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے کیا پہلے کہا اور اس کے آگے کیا۔ تو یہ تو میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ ہر قسم کا جو سلوک ہوتا ہے، یا ہم اس کو انگلش میں بیہیویئر بولیں گے، وہ دراصل ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے۔ ایک انسان آپ سے کیسا سلوک کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، ایک کوئی چیز بتا رہا ہے اپنے اندر، وہ جو محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کی بات پہ تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن فی الحال بچوں کی بات کرتے ہیں۔ بچے جو چیز اپنے الفاظوں کے ذریعے بیان کرنا نہیں جانتے، وہ پھر اپنے سلوک سے بتاتے ہیں، اور وہ سلوک اس طرح مختلف طریقوں سے نکلتا ہے۔ کہیں آپ کو لگے گا کہ وہ جواب دے رہے ہیں، کہیں لگے گا کہ وہ ضد پہ آئے ہوئے ہیں، کہیں لگے گا کہ عجیب اور بے ادب والی حرکتیں ہو رہی ہیں، کوئی تمیز نام کی چیز ہی نہیں۔ چیلنج تو یہاں پہ یہ ہے کہ ماں باپ اس بیہیویئر کے آگے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ زیادہ تر ماں باپ نہیں دیکھ پاتے کہ اس بیہیویئر کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ بچے ایسی طریقے کا سلوک ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ ہر ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کے بچے یا تو کہیں پہ بے ادب ہوئے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے۔ اب ہمیں اس دوران نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بچہ بڑا ہی ایک دم سے بے ادب روڈ ہو گیا ہو، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ ہمیں جواب دے رہا ہے، بحث بازی چل رہی ہے۔ آگے آگے یہ دیکھیں تو پتا چل رہا ہے کہ وہ بالکل اپنے بہن بھائیوں کو مار بھی رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، جواب دے رہا ہے، اور بالکل کسی بھی معاملے میں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب دیکھا تو یہ جائے تو ہمیں تو نظر اس کا بیہیویئر آ رہا ہے، ہمیں اس کا سلوک نظر آ رہا ہے، اور یہ سلوک کوئی اچھا نہیں، بڑے واضح انداز میں خوب ایک بالکل تباہ کرنے والا سلوک جو ہمیں پسند نہیں آ رہا، یہ ہمارا غصہ بھی بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کیا یہی سلوک، یہی بیہیویئر کسی طرف ایک بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کوئی میسج ہے، کوئی اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہمیں سمجھنی ہے؟ اور اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے پہلے کہ بچے اپنے الفاظوں کو یوز کریں، وہ اپنے سلوک سے بتاتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ ایک دم سے تو بولنا نہیں سیکھتا، وہ تھوڑی بولنے لگتا ہے کہ مجھے سونا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، وہ اپنے رویے سے بتا رہا ہوتا ہے۔ اس نے اسی طرح بچپن میں فطری طور پہ یہ چیز سیکھی ہوتی ہے۔ وقت اس کو الفاظ میں بدلنے میں بتاتا ہے کہ اس بھوک لگنے کا احساس ایسے ہے تو اس کو وہ بھوک بولتا ہے، درد کا احساس ایسے ہے تو اس چیز کو وہ درد بولتا ہے، پیاس کا احساس ایسے ہے تو پھر وہ اس چیز کو پیاس بولتا ہے۔ یہ وقت سکھاتا ہے۔ ہم بڑے تو کہہ دیتے ہیں آرام سے، آج میرا دن بہت مشکل تھا، مجھے تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، بس مجھ سے بھی کوئی بات نہ کرے، مجھے کچھ ٹائم اکیلے چاہیے۔ ہم بڑے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں اس وقت، مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ ہم بڑے اپنے الفاظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ بچے ابھی یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوئی ہوتی، ان کی ایموشنل ووکیبلری بھی گرو کر رہی ہوتی ہے، اور خود کو پہچاننا یعنی خود کے اندر سیلف اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بس یہی تو بات ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ اب بچے اسی طرح سیکھیں گے تو ہر سلوک کے پیچھے ہمیں کہانی نظر آنے لگے گی۔ اب آپ اس طرح سوچیں کہ فیلنگز اور ضرورت کا تعلق ایسا ہے جو آئس برگ سرفس سے اوپر کیسے نظر آتا ہے اور سمندر کی تہہ کے نیچے کیسے ہوتا ہے۔ بس یہی کہ آئس برگ اگر آپ سمندر کے اوپر سرفیس پہ دیکھیں تو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو سمندر کی تہہ کے نیچے ایک بڑا سا چٹان ہوتا ہے۔ بس یہی تعلق فیلنگز اور بیہیویئر کا ہے۔ بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے اور فیلنگز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب آپ کو میں بتاؤں جو فیلنگز ہے وہ دراصل
नीड है। अगर आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आपको ये नज़र आ रहा है, तो अगर आप सरफेस के नीचे देखें, तो उसके दिल में कोई खौफ होगा। वो किसी खौफ को महसूस कर रहा होगा, खौफ कि शायद ये चीज़ मुझे ना मिले, खौफ इस ये मौका निकल जाएगा हाथ से, किसी भी लेवल का खौफ हो सकता है। अगर आपको सरफेस के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि वो बेअदब हो रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ रूडली जवाब दे रहा है, तो आप सरफेस के नीचे देखिए, शायद किसी बात की एंग्जाइटी हो, घबराहट हो कि हाँ, ये अगर मेरे बात इस बात पे आ गई तो शायद मैं ट्रबल में आ जाऊँगा, या ये माँ-बाप को पता चल जाए तो ये मैं ट्रबल में आ जाऊँगा। कोई ना कोई किस्म की फीलिंग उनको एंग्जाइटी फॉर्म में नज़र आ रही होती है। अगर आप देखें कि वो बात-बात पे बहस कर रहे हैं और वो बहस चलती जा रही है, समझ नहीं रहे, यहाँ पे हो सकता है कि वो जो सरफेस के नीचे बात है, वो एग्ज़ॉशन बयान कर रही हो, किसी भी लिहाज से एग्ज़ॉशन, पढ़-पढ़ के थक गए हों, खेल-खेल के थक गए हों, या अपनी रूटीन से थक गए हों, या कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको बिल्कुल उनके लिए एग्ज़ॉस्ट कर चुकी हो, तो ये निशानी है। अगर वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझें कि कहीं न कहीं शायद वो तन्हा हैं, तन्हाई महसूस कर रहे हैं। अब उनको तन्हाई बयान करने का तरीका नहीं आ रहा। अगर आप देखें कि वो चिड़चिड़े हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीखना-चिल्लाना इसको इंग्लिश में हम व्हाइनिंग भी कहते हैं, तो दरअसल वो फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। शायद उन्होंने दिन में बहुत ज़्यादा ट्रांज़िशन देखे हों, एक चीज़ देखी हो, दूसरी चीज़ देखी हो, अब वो बस उनसे नहीं हो रहा। हो सकता है कि वो रिलैक्स होना चाह रहे हों, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही। अगर आपका बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, बात पे कोई भी चीज़ से कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो ओवर स्टिम्युलेटेड हों। उनके लिए अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब वो इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते। या ये भी हो सकता है कि उनको किसी चीज़ से मायूसी हुई हो। बस एक आखिरी चीज़, अगर आपका बच्चा आपके साथ बहुत चिपका हुआ होके बैठा हो, वो कहीं जा नहीं रहा हो, लेकिन आप बाहर गए तो वो आपके साथ बैठा हुआ हो, बस खेल नहीं रहा हो, या वो कहीं पे आपको बाज़ार में आप जाएँ, तो बस आपके साथ लगा हुआ हो, आप ही के साथ, और आके मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए, तो दरअसल वो किसी कनेक्शन को ढूँढ रहे हैं। वो चाहते हैं कोई कनेक्शन मिल जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें बिहेवियर नज़र आता है और उस सरफेस के नीचे उसकी नीड होती है। बस हम माँ-बाप जब इस चीज़ को नहीं देख पाते और सिर्फ़ बिहेवियर को देख पाते हैं, तो हम उनकी नीड के प्रोवाइड करने में एक मिस हो जाता है हमसे, और हम नहीं कर पाते, और यहाँ पे आ जाता है गैप। अब यहाँ पे बच्चे ये कहना चाह रहे होंगे, और ये आपने एज़ अ पेरेंट इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। यही कि बच्चा शायद ये कहना चाह रहा हो कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे तवज्जो की ज़रूरत है, मैं इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे ये फीलिंग बिल्कुल मग़लूब कर रही है। मैं मायूस हो रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि कोई मेरे करीब हो, मेरे साथ हो। मुझे मदद करें कि मैं समझूँ। मैं थका हुआ हूँ, बस। बच्चे यही कहना चाह रहे होते हैं। तो एक बच्चा जो बेअदब हो रहा हो, जिसको हम बोलेंगे कि बात-बात पे ना कह रहा हो, तो आपको मैंने बताया, तो हो सकता है एंग्ज़ायटी है उसके पीछे। अब आप उस पे यही रिस्पॉन्ड करेंगे, देखा इसने मुझे ना बोल दिया। मैंने एक काम बोला था, इसने ना बोल दिया उस पे। हमारा रिस्पॉन्ड ऐसे होता है। यहाँ पे ये समझें कि हम बहुत टाइम बच्चे को डिक्टेट करते हैं, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब बाहर जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, हम बहुत सी चीज़ों के उसको डिक्टेट करते हैं। यहाँ पे बच्चे की अपनी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में नहीं, और वो चाहता है कि कुछ चीज़ मुझे कंट्रोल में हो, मैं खुद उसको कर पाऊँ। ये एक फ़ितरत है इंसान की कि वो चाहता है, वो अपने हाथ में बात चाहता है। बस जब ना हो तो उसे एंग्ज़ायटी होती है, बस आपने यही चीज़ को समझना है, और उसको समझने के लिए उसकी मदद करें, और देखें कि कैसे उसके ये रवैये कम होते हैं। अब एक एग्रेसिव बच्चे को ले लें, उसके एग्रेसिवनेस की कोई वजह हो सकती है। वो एक्शन तो ये देखेगा, बिहेवियर ये देखेगा कि वो मार रहा है, पुश कर रहा है, जाते-जाते धक्का दे रहा है, कोई भी चीज़ उठा के ऐसे फेंक रहा है। अब वो बच्चा ये हरकत कर रहा है। याद रखें, ये जो गुस्सा नज़र आ रहा है, ये इसका सानवी रवैया है, सानवी इमोशन है। अंदर बात कुछ और है। अब खुद तवज्जो फरमाएँ इस चीज़ पे कि अगर बच्चा स्कूल से कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके आ रहा हो और एकदम से अंदर घुसे और हरकत करे घर के, तो आपका शायद रवैया सख्त होगा कि आते ही साथ शुरू हो गए। बस यहाँ पे आपका रवैया डिफरेंट होना चाहिए। पहले तो उसको हटाएँ वहाँ से, क्योंकि वो अपने हर्ट कर रहा है लोगों को, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फिर आप बात करें और पूछें, बजाय ये कहने के कि क्यों रोका? क्यों मारा? क्यों किया? पूछें कि मुझे लग रहा है आप अपसेट नज़र आ रहे हो। कोई तो वजह होगी। लेट्स टॉक। बस यहाँ पे ये भी बता दें कि हाँ, मारने की इजाज़त बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके जज़्बात हमें समझ आ रहे हैं। अब एक बच्चा जो बात-बात पे रो रहा होता है, अब उससे ज़्यादा तंग होने वाली बात माँ-बाप के लिए कुछ नहीं कि हर बात पे रो रहा होता है। अब यहाँ पे रोना उसके लिए कोई और वजह होती है।
लेकिन सबसे पहली और प्राइमरी नीड ये होती है कि वो तवज्जो चाह रहा है और कनेक्शन चाह रहा है। अब वो नेगेटिव बिहेवियर से कनेक्शन माँग रहे हैं कि मैं हर बात पे रहूँगा, मैं हर बात पे करूँगा, मुझे तवज्जो मिल जाएगी। यहाँ पे एक काम करना ज़रूरी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों। फ़ौरन उस बच्चे को अलग करें और उसके साथ कनेक्ट हों। जैसे आप कनेक्ट होंगे, तवज्जो मिलेगी, उसकी रवैया बदल जाएगा। और अगर वो बच्चा जो बात-बात पे रोना नहीं, मतलब मेल्ट डाउन हो जाता है उसका, तो उसका क्या होगा? उसकी नीड क्या होगी? अब आप देख नोटिस करते होंगे कि आपने बच्चे ने आपको कोई काम बोला तो आपने वो किया, ऐसे नहीं करना था, या मैंने इस प्लेट में नहीं खाना है, मुझे ये प्लेट नहीं, मुझे ये खाना नहीं खाना, ये तो आपका फेवरेट फूड है, नहीं ये नहीं खाना। जब बच्चे ऐसे ज़िद करें और ऐसे मेल्टडाउन शो करें, तो हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, वो थके हुए हों, वो अंदर से फीलिंग्स इमोशनली टायर्ड भी हों, हो सकता है उनको भूख लगी हो सकता है कि वो ओवर स्टिमुलेटेड हों, कोई चीज़ परेशान कर रही है और उनके इर्द-गिर्द बहुत शोर है। अगेन यहाँ पे सबसे पहले उनकी नीड को पूरा करना है और आप जैसे वो करेंगे, वो बेहतर फ़ील करेंगे। अब एज़ माँ-बाप मैंने आपको दिखाया शुरू में कि माँ-बाप ज़्यादा कैसे बात करते हैं आपस में कि मेरा बच्चा बदतमीज़ हो गया है, देखा उसको किसने बिगाड़ दिया। अगर यहाँ पे ये रवैया माँ-बाप का बदल जाए और वो कुछ इस तरह हो, हाँ, आज बेटे ने थोड़ा जवाब दिया है, अच्छा तो नहीं लगा मुझे, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि वो जवाब दे रहा हो? कोई है उसकी नीड या कोई चीज़ हमने मिस कर दी उसकी? हाँ, आपने ये पहले भी ज़िक्र किया था। हाँ, खाना तो टाइम पे मिल रहा है उसको। हाँ, हो सकता है। खेल-कूद में कहीं थका हुआ तो नहीं था वो? देखिए, अब तो वो हो रहा है बड़ा और मैं बाप हूँ। मुझे पता है जब लड़के जवान हो रहे होते हैं, तो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती। हॉर्मोन्स का फ़र्क होता है। इसी तरह आपको भी पता होगा ना जब लड़कियाँ बड़ी होती होती हैं, किस तरह फ़र्क आ जाता है उनके रवैयों में। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कोई उनकी ना स्किल पे काम करना चाहिए, ताकि वो बता सके कि कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को बताऊँ, जो भी महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, हमें फीलिंग्स पे काम करना चाहिए। अगली बार अगर वो इस तरह जवाब दे, तो उसको ज़रा आराम से समझाना कि देखो, जवाब देने से अच्छी बात नहीं। अगर गुस्सा आ रहा है, तो पहले आराम से बैठ जाओ और गुस्से का इज़हार करो लिख के कि मुझे क्या-क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं। फिर बता दो हमें कि हाँ, क्या वजह है। तो हम बस आप भी तवज्जो देना और मैं भी तवज्जो दूँगा कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चों की शायद हमें उन पे काम करना चाहिए। क्या ये बेहतरीन तरीका नहीं मियाँ-बीवी में का बातचीत करने का? देखिए, यहाँ पे मियाँ-बीवी कितने बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे के रवैये पे वो रिएक्ट नहीं कर रहे और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर रहे कि हाँ, उसका आइंदा से ये चीज़ बंद और वो बंद, टाँगे तोड़ दूँगा मैं। बल्कि वो ये कर रहे हैं कि हाँ, कनेक्शन डेवलप करते हैं। देखिए, बच्चों को ज़रूरत एम्पैथी और लिमिट की दोनों की है। ये नहीं कि आप सिर्फ़ एम्पैथी दें और लिमिट ना रखें। दोनों को बराबर लेके चलना है। हम पेरेंट्स का याद रखें, गोल ये नहीं कि हम बच्चों को उन रवैयों को रोकें और बस आइंदा से कभी भी ये जवाब ना दें, खबरदार इसने हमें ना की। हमारा गोल एज़ पेरेंट्स ये है कि हम अपने बच्चों को वो सलाहियतें दें, उनको वो महारत दें, ताकि वो अपने बड़े-बड़े इमोशंस को हैंडल करना सीखें। वो अल्फ़ाज़ दें, वो बातें बताएँ ताकि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताएँ कि अगर कभी ज़िंदगी में या बाहर कहीं घर में बाहर मसला आ जाए तो उनको हमने कैसे सँभालना है। हमारा जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि फर्स्ट एड क्या देनी होती है, जान बचानी होती है। बस बच्चों को यही चीज़ सिखानी है। हमें उन्हें सिखाना है कि अपने इर्द-गिर्द बेहतर रिश्ते कैसे रखें और बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। बस अगर हम माँ-बाप अगर उनके रवैयों के पीछे छुपी वजह को समझ जाएँ, सिर्फ रवैयों को ना देखें और उसके पीछे छुपी वजह समझ जाएँ, तो हम एक बेहतर रहनुमा बन सकते हैं उनके लिए। और उन बच्चों को और क्या चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि कोई उनकी रहनुमाई करे, उनसे राब्ते रखे प्यार और मोहब्बत के साथ। आखिर में बच्चों के रवैयों से आगे देखेंगे तो हम माँ-बाप को नज़र आएगा कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों को ज़रूरत रहनुमा की है, उनको रहनुमाई चाहिए। बच्चे माँगते हैं और वो बहुत ही ज़ोर-ओ-शोर से इस चीज़ का बयान कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम तभी वो अपना रोल निभा सकेंगे जब हम उनकी रहनुमाई करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे और फिर रहनुमाई करेंगे। अब आप अगर इस तरह माँ-बाप ऐसे सोचें कि मैं सारे दिन की थकी हुई हूँ या मैं सारा दिन ऑफ़िस के कामों से थक गया हूँ, मुझसे ये सँभाला नहीं जाता, तो फिर क्या हम हकदार हैं बच्चों को पालने के लिए, जब हम उनको सँभाल नहीं सकते? बस यहाँ पे बच्चों का हर रवैया और हर सलूक एक कहानी बयान करता है। बस सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हम माँ-बाप उस चीज़ को देख पा रहे और सुन पा रहे हैं उस कहानी को? इतनी सी तो बात है। हम में वो हौसला और सब्र आना चाहिए।
اس طرح کی اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور یوٹیوب پہ فالو کریں. اس طرح مجھے بھی اندازہ رہے گا کہ آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے.